Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, students. Hopefully, all of you are doing well, and I welcome all of you on the board for your new session of AS level biology. In the meantime, I'm just going to give you the rights so that you should unmute yourself. I think I don't have the rights. I will request the host to make the students unmute so they can discuss with us. Can you unmute yourself, because I need a brief introduction of all of us. I mean, I want to introduce myself. Being as a Muslims, it's very mandatory to introduce yourself first of all in the first class. So today is just like in introductory class, and I'll give you something about the important aspects of AS level biology, about myself, and I'll ask you about your names as well in your college and your school as well. And then I'll give you idea about the course contents, about the marking schemes, about the syllabus criteria, and about your examination pattern in AS level. Although we have plenty of time, but I think these are very necessary to discuss each and every aspects of the subject. Although later on we will not discuss about all these things, but this is first class to discuss all about that. Therefore, it's mandatory. So let's me to introduce myself first of all. I'll try to show the camera if it is working. I don't know either it's working or not. I'm just going to try to make myself. Yeah, so probably I think I'm clear here and you can see me. Oh, yes, sir. Okay, thank you. So, well, my name is Javed Khan Afridi, and I have been teaching AS level biology since 2002. It's a long journey. And in Wales College, I have been teaching since 2012. I have done my master's in botany from University of Peshawar in 1996. And then I have done my Bachelor of Education as well. So I have a lot of experience about the AS biology, and I'm trying my best, and I usually emphasize on productive teaching to prepare students on the examination point of view for their AS level contents. Well, this is a brief introduction, and I'm just going to switch off the camera because it slows down the speed. So this is all about me, and currently I'm teaching in so many colleges here in Wales College, but in Gulshan, I'm teaching only in Wales College exclusively. And I'm teaching in North as well, and in Peaches as well, and Clifton area as well. But in Gulshan, I'm exclusively teaching in Wales College. So this is all about me, and I will more than happy to ask you about you people one by one. So I'm just calling the name, and the student just switch on the mic and just give me a brief answer of my question. So first of all, I want to ask Afifa Khan. Afifa hai or Afifa hai? Would you like, from which college are you? Where did you pass your O-levels? Sir, Assalamu alaikum, sir. Sir, I am Walaikum from salam. Rangers Public School. From? Rangers Public School. Rangers Public School. That's great, Afifa. So welcome you. Right. Next one is Afifa Rahim Kundi. Yes, Afifa Rahim Kundi. Walaikum salam, beta. Yes, I'm you from the from? I'm from the Forbes High School. Forbes High Can you repeat School. it again? Okay, Forbes okay, High that's School. yeah, I got it. Thank you, beta. Thank you very much. You're welcome. Right. Ahmad Afzal. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam, beta. Sir, I am a private candidate. Oh, that's nice. Wal. Okay. Inshallah, you will enjoy the classes with us. Thank Right. you. Welcome. Next one is the Alishba Wasim. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, beta. Sir, I've done my O-levels from Sunbeams Primary School.
Oh, that's great. Great. So welcome, Alijba, here on the board. Thank you, sir. So the next student is the Amir Musa Tariq. Yes, Amir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum I've salam. done my O levels from Wajsan school system. Oh, that's, it's close our neighbor. It's our family. Okay, so welcome you, Amir, here on the board. Yes, the next one is the Amsal Azim. Yes, Amsal. Assalamu alaikum, sir. My name is Imtal Azim and I've Walaikum done salam, my beta. practical schooling system O-level campus. Great, great. Welcome, Amsal. The next one is the Anusha Akram. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, beta. Sir, I'm from Montessori Complex, Cambridge School. Montessori Complex. Okay, welcome also, Anusha, on the board. The next one is Aska Khalid. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, beta. Sir, I have done my O levels from Happy Palace Group of School. Okay, from Happy Palace, great. That's on the Aisha Manzil or in Gulshan? Yes, sir. That's Aisha Aisha Manzil. Manzil. Okay, great. So welcome you, Afif, on the board. The next one is the Dawood Mubin. Yes, Dawood. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Sir, beta. I'm from Veritas school system. Veritas schools. Okay, welcome Dawood Yeah. on the board. Thank you. Thank you, sir. Welcome beta. Next one is the Dawood ki baat kaun hai? Faiz Siddiqui. Yes, Faiz Siddiqui. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Faiz. Sir, I have done my O levels from Karachi Public School. Karachi Public School. Okay. Okay, that's great. Faiz Siddiqui, welcome you on the board. Yes, next one is the, let's see, Fatima Aziz. Yes, Fatima Aziz. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam, Fatima. I have done my O levels from Montessori Complex, Cambridge School. Fine, great, great. So welcome you, Faiza, on the board. Thank you. Next one is the Huria Batul. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Huria. I've done my O levels from Bahadur school system. Oh, great, Fatma. So that's, sorry, who is here with us? Huria. Huria, yes. Oh, welcome, Huria, on the board. So see you, inshallah, in the classes. Next one is Huzair Khan. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Huzair. Sir, I have done my levels from SPGS, Happy Palace Group of Schools. Okay, same. That is Aisha Manzil. Okay, okay. So see you. Welcome on board. Right. Next one is the Arine Iqbal. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Arine. It's actually Irene. Irene. Okay, I'm so sorry. Let me to correct because it's a bit unique name, Irene. Okay. And I've done my O levels from Wahaj Hussain. From Wahaj Hussain. Okay, so you are also our neighbor, but it's a family. Welcome, Irene. Next one is yes, Laiba Siddiqui. I can't hear you. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, beta. सर मैंने मोंटेसरी कॉम्प्लेक्स कैम्ब्रिज स्कूल से किया है ओ लेवल्स. Okay, great, great, mashallah. So welcome you on the board. Thank you. Welcome. Next one is the I think it's Lamia Siddiqui. Correct me if the name Lamia or Lamia Siddiqui. Yes, beta. Lamia Siddiqui. I can't hear you. I think there's some problem in the mic with her because I'm not audible. She's not audible to us. Right. The next one is the Mahnur Haq.
Yes, Mahanur, you here? Assalamu alaikum. Sir, I'm Manur Haq Walaikum and assalam. I've studied from Beacon Light Academy. Okay, Beacon Light, great. So welcome you. Welcome to you on the board. And Mahanur. Okay, Lamia, no problem. I think I can understand your mic is not in functioning. Next time, inshallah, we'll just talk to one another. And the next one is the Mariam Ahmed. Yes, Mariam. Assalamu alaikum. Walaikum salam, beta. My name is Mariam and I have done my O levels from Happy Palace Grammar School. Happy Palace Grammar School. So welcome to you, beta, on the board. Mariam, Thank you, sir. welcome. Next one is Muhammad Fawaz. Yes, Fawaz. Assalamualaikum. Walaikum salam, beta. Sir, मैंने अपना O levels वाज हुसैन से किया. Great, mashallah. So it means this is also a family. Welcome Fawaz on the board. Next one is Muhammad Ahsan. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam, Ahsan. Sir, I've done my A-levels from HPGS Happy Palace Grammar School. Great, great. So also welcome to you on the board, beta. Thank you so much, sir. Welcome. Next one is the Muhammad, I think it's Fuzan Jafri or Fuzan Jafri. I think it's Muhammad Fuzan Jafri. Sir, it's Fazan. Fuzan Jafri. Okay. How are you, Fuzan? Sir, I'm fine, thank you. I did my O-level from Practical Schooling System, O-level campus. Okay, that's great. So welcome to you on the board. Next one is the Muhammad Osama Amir. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam, Osama. I have done my O levels from Happy Palace Grammar School. Okay. I mean, there's a lot of family members of the Happy Palace Grammar School. So welcome to you, Osama, on the board. Thank you, sir. Okay, welcome. Next one, we have Sadia Khan. Yes, Sadia. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Sadia. Sir, I've done my O levels from Bahad School System. From Wahad Hussain. Okay, so also another family member. So welcome to you, Sadia, on the board. Thank you, sir. Welcome. The next one is the Samita Jahan Ara. Yes, Samita. Is Samita here? Sir, I'm Yes. Samita Sahara Yes, sir. from WCHS Public School. Which school, beta? Can you repeat it? Yes, WCHS Public School. WCHS Public School. Okay, that's great. So welcome to you on the board, beta. Thank you, sir. Welcome. Next one is the Shiza Farooq, I think. Shiza Farooq. Yes, Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, beta. I've done my O levels from the city school. City School, which campus? It's Gulshan. Yes, Gulshan campus C. Okay, see you, beta, on the board. Welcome. Thank you. The next one is the we have it's Shumaita Muhammad Salim. Can you correct me? I think it's the name. Assalamu alaikum. Walaikum salam, beta. Shumata. What's your name, beta? Shumata. Okay, Shumata. great. So from which school? I'm from HPGS Aisha Mansur branch. Okay, that's great, beta. So welcome to you on the board. Thank you. Okay. Next one is the Simra Arif. Ji, Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Simra. Ji, sir, I have done my O levels from Happy Palace. Okay, another Happy Palace member. Welcome to you on the board, beta. Thank you. So next one. Yes, it's Subata Khan. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Subata. I've done my O levels from Montessori Complex, Cambridge School. Oh, it's a big contribution of the Montessori School as well. It's a lot of students I can see here. Welcome to you on the board, beta. Thank you. Next one is the Sayyid Ali Shahryar Rizvi. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Shahryar. Sir, I've done my O levels from the Froebels High School. Which school is this? The Froebels High School. The Froebels School. Okay, fine, beta. So see you on the board, inshallah. Welcome to you, all of you. Thank you.
Next one is the Sayyid Fahim Nabil Ahmed. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Nabil. I've done my O levels from Beacon Light Academy. Beacon Light Academy. Okay, that's great. So also welcome to you on the board. The next one is Sayyida Amna Fatima. Assalamu alaikum. Walaikum salam. I'm from Beacon Light Academy. Okay, another one, Beacon Light. Welcome to you, Fatima. The next one is the Sayyida Filah Batul Rizvi. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Filah. Sir, it's not Fila, it's Fila. It's Filah. Okay, I'm so sorry, beta. It's a first class, so it's like a bit confusion. Sir, It's Filah. Okay. From Al Hadi Academy. Al Hadi Academy. Okay, that's great to see you here. Welcome. The next one is the Sayyida Husni Zainab. Hopefully it's correct. Sayyida Husni Zainab. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Husna. Is it the correct name? Husni Zainab? Yes, it's Husna Zainab. Okay, that's great. So from where did you pass your O level? Al Hadi Academy. Okay, another one. Okay. So welcome to you, beta, on the board. See you the next Thank one. you. Welcome. Here is the Tania Fatima. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, beta. Sir, I have done my O levels from Al Hadi Academy. Al Hadi Academy, though. So there's another school as well, which has a lot of contribution in their students. Once again, I say, welcome to you on the board, beta. Thank you, sir. Okay. Right. So Zainab Kindi, I think it's Kindi. Zainab Kindi. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Zainab. Sir, I have done my O levels from Wahid Indoor Grammar School. Okay, and can I, pronunciate your correct name is Kindi? That's Zainab. Yes, sir. Zainab Kindi. Zainab Kindi. Okay, so welcome to you, Kindi, on the board. Thank you, sir. Welcome. All right. The next one is the Zaniab Ashfaq. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Zaniab. Sir, it's Zainab. Oh, I'm so sorry. I'm really very sorry because I didn't see the correct wording here. Beta thoda sa chashma bhi idhar udhar ho gaya mera. So I'm so sorry. Zainab, yes. So Sir, I've done my O levels from Bahadur School System. Okay, another family member. So that's great. Welcome to you, beta, on the board. Thank you, sir. The next one is the Zubia Sayyid. Yeah, Saeed. Sir, yes, it's Saeed. Saeed, okay, Zubia Saeed. Yes, beta, from where did you pass your O Sir, levels? I have done my O levels from Wahid Endowed Grammar School. Oh, that's great. So welcome to you, beta, on the board. Thank you, sir. Welcome. The next one is the, I think it's Zunaira Hanif. Okay, so Naira, I think say some mic problem. I have done my O levels from Wahaj Hussain. Okay, that's great. No problem, Naira, if you have a mic issue. Hopefully, all of you have introduced yourselves. Maybe we have 42 candidates right now. If there's someone who did not introduce I didn't ask them, so please, it's a request to introduce yourself here. Your mic, you can have switch on your mic. Is there anyone left? I think all of you have introduced yourself. Right. Okay, fine. So beta, initially I will try to start the syllabus contents with a slow pace because there are a lot of students who still are waiting for their admissions. And I think when all the students have been registered, because once there's one big problem with A levels, unlike O level. थोड़ा सा फर्क है, अगर ए लेवल्स में शुरू की कुछ क्लासेस मिस हो गई तो उसको कंपेंसेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम होता है इस लेवल की कंप्लीट सिलेबस करने के लिए. हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं
और काफ़ी लेंदी चैप्टर्स है, और इसको साथ साथ आपको प्रैक्टिकल्स की भी तैयारी करनी होती है। बिकॉज ओ लेवल में तो आप लोग ATP दे देते हो, तो आप का प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो मसला नहीं होता। यहाँ बाकायदा आप प्रैक्टिकल्स खुद परफॉर्म करेंगे और एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके सर पे खड़े होंगे और देखेंगे कि आप किस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी की तैयारी करनी पड़ती है, और फिर थ्योरी की 2 अलग अलग पेपर्स हैं, इसलिए यू मस्ट हैव टू वर्क हार्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और दूसरी बात यह है कि अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा एज लेवल के हवाले से। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को साफ आ रही है बेटा? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई? Yes, sir. It's all clear. ठीक है, क्लियर। तो उसमें एक दो चीजें जो आपको देखने में मिलेगी कि किस तरह एग्जामिनर आपके पेपर्स को देखता है, वो किस तरह मार्क करता है, और क्यों हम ये लोग कहते हैं कि ए लेवल्स में ग्रेड्स आना थोड़ा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू ओ लेवल। तो ये भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और ये रिक्वेस्ट मैं हर साल जब बच्चे आते हैं एएस में, तो मेरी पहली रिक्वेस्ट ये होती है कि खुदा के लिए बच्चों आज से ही पढ़ना शुरू करो। एज लेवल में सिर्फ वही बच्चा ग्रेड ले सकता है जो कंसिस्टेंट हो। उनको काबिल होना ज्यादा शर्त नहीं है कि वो काबिल हो या वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो। इन दोनों चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो, हर क्लास में प्रेजेंट हो और क्लास मिस ना करे, पंक्चुअल हो, रेगुलर हो, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक राज की बात बता दूं, अगर आप एज लेवल का जो पूरा करिकुलम है, इनकी अगर आप वर्किंग डेज निकालें कि हम कितनी क्लासेस लेते हैं, तो ये तकरीबन 132 डेज बनते हैं, जिसमें बाकी सारी छुट्टियां आती हैं। तो यार एक बात बताओ मुझे, 132 डेज का मतलब हो गया तकरीबन 4.5 महीने। तो 4.5 महीने के अंदर आपने 11 चैप्टर्स विद पास पेपर्स और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस समथिंग लॉट ऑफ स्टफ तैयार करना आसान काम तो नहीं होता, इसलिए पहले दिन से कंसिस्टेंटली पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा बेटा, मैं जैसे अभी आपसे पहला चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगा सेल वाला, तो एक चैप्टर में एक मिसाल देता हूं सिर्फ। फर्स्ट चैप्टर के खत्म होने पे जो मैंने एमसीक्यूज कंपाइल किए हैं, इट्स नियर अबाउट 300 एमसीक्यूज। तो यार मुझे एक बात बताओ, अगर आपने पहला चैप्टर कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ा और दूसरे चैप्टर की बारी आ गई, तो 600 एमसीक्यूज को टैकल करना आसान काम तो नहीं है ना। फिर एमसीक्यूज सिर्फ नहीं है, उनके साथ स्ट्रक्चर क्वेश्चन भी हैं। इसलिए मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा अगर आप लोग क्लासेस मिस करेंगे या सारे स्टूडेंट्स मौजूद नहीं होंगे क्लासेस के अंदर, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि यार ये बच्चे मिस कर रहे हैं क्लासेस। तो इसलिए ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि क्लासेस कंसिस्टेंटली रहें। और ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, ये रिकॉर्डेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा बाद में। मैं आपको रिकॉर्डेड और हल्फिया कहता हूँ कि जो बच्चा कंसिस्टेंटली क्लास ज्वाइन करके रखेगा आखिर तक, उसका ग्रेड आएगा, लाजमी आएगा, अच्छा ग्रेड आएगा। अदरवाइज ए लेवल में ग्रेड लेना बहुत मुश्किल इसी वजह से हो जाता है कि बच्चा थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, वो कह रहे मैं कॉलेज में आ गया हूँ, कभी क्लासेस लेता है कभी नहीं लेता, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आप अपने दोस्तों को भी बता दो, जो कि क्योंकि मेरे पास जो एनरोल स्टूडेंट्स है नियर अबाउट 60 के करीब है, लेकिन यहाँ इस वक्त मेरे पास 40 के करीब स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबको इन्फॉर्म करें कि वो जल्दी जल्दी अपनी एडमिशन क्राइटेरिया कंप्लीट कर ले, ताकि हम स्मूथली अपना सिलेबस कंटेंट्स शुरू करें। होपफुली मेरी बात ये आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। और अब मैं आपको लेके जाऊंगा थोड़ा सा कोर्स कंटेंट की तरफ। आपके साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन पे आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा अपने एएस लेवल के हिसाब से कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग रेडी है? Yes, sir. चले जी, चले जी, तो बस तो ठीक है, फिर हम चलते हैं और आपके साथ अपना स्क्रीन अभी शेयर कर देते हैं। मेरा स्क्रीन आप लोगों को नजर आ गया बच्चा? यस सर। जी ठीक है, तो अभी आपके साथ एक एनिमेशन मैं शेयर कर रहा हूं जो आपको पूरी डिटेल देगा। Bismillahirrahmanirrahim. So let's introduce our AS level biology. It
एज का मतलब होता है एडवांस सब्सिडरी, ठीक है। और ए लेवल आपको पता ही है वो एडवांस लेवल होता है। तो एडवांस लेवल को, ए लेवल को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा एडवांस सब्सिडरी कहलाता है और दूसरा हिस्सा कहलाता है एडवांस लेवल बायोलॉजी, इसको हम A2 कहते हैं। तो सिलेबस, वर्कलोड और वेटेज के मुतालिक बात करते हैं। क्या वर्कलोड है हमारा, क्या इसका वेटेज है, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं। There are three papers in which you have to appear, but this is not only in biology, this is also in chemistry, this is also in physics. You have to appear in 3 papers. बाकी टीचर ने भी बताया होगा आप लोगों को। पेपर 1 की हम पहले बात करेंगे कि पेपर 1 क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। सो पेपर 1 जो है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं यहाँ 1-2 बातें आपके साथ शेयर करूं बेटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने ओ लेवल के अंदर भी दिया था, लेकिन ओ लेवल में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ही आसान होता था और उसमें जो आपके पास 4 ऑप्शन आते थे तो उसमें साफ पता चलता था कि 3 गलत है और 1 सही है। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट था जिसकी पढ़ाई अच्छी होती थी तो उसको साफ पता चलता था। एज लेवल का सबसे बड़ा सेटबैक मसला यही है कि each MCQ have at least minimum 2 right answers। उसमें 2 आंसर सही होते हैं, ज्यादातर में 4 या 3, बल्कि एक कुछ जो सबसे आसान सवाल होता है उसमें भी 2 आंसर्स तकरीबन सही होते हैं। और आपसे एग्जामिनर पूछता है चूज द करेक्ट आंसर, आपसे ये नहीं पूछता चूज द बेस्ट, चूज द करेक्ट, सॉरी वो आपसे ये नहीं पूछता चूज द करेक्ट आंसर, बल्कि वो आपसे पूछता है चूज द बेस्ट आंसर। तो इसमें जो अच्छा आंसर है वो ये कहेगा सही तो दोनों है लेकिन कौन सा बेस्ट है। तो बेस्ट का फैसला करने के लिए आपके स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तब आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो ये थोड़ा सा इसका मुश्किल है। और नॉर्मली इसमें होता क्या है, टोटल मार्क्स होते हैं इसके 40, क्योंकि इसके अंदर और इसका जो ड्यूरेशन होता है बेटा वो 1 आवर का होता है। तो 1 घंटे में आपने 40 MCQs को टैकल करना होता है। अच्छा अब जी 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 बोले बेटा। लाइक अभी रिसेंट सिलेबस चेंज से उन्होंने 15 मिनट्स और बढ़ा दिए थे ना बेटा? वो बायोलॉजी में नहीं है, वो फिजिक्स में है और केमिस्ट्री में आई थिंक है, लेकिन बायोलॉजी में इन्होंने 1 आवर ही रखा है, 1 आवर एंड 15 मिनट्स नहीं है। वो शायद वो फिजिक्स में है, क्योंकि फिजिक्स का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। हाँ हाँ एज लेवल का होगा। I'll confirm that, but I know it's physics के लिए तो उन्होंने इसको 1 आवर एंड 15 मिनट्स कर दिया था, लेकिन बायोलॉजी के लिए शायद इन्होंने अभी भी वही 1 आवर ही रखा हुआ है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सो इस लिहाज से बेटा अगर आप 40 MCQs टैकल करते हैं 60 मिनट्स में, तो आपको एक MCQs को हैंडल करने के लिए 1.5 मिनट्स चाहिए होते हैं। 1.5 मिनट में आपने एक क्वेश्चन को निपटाना होता है। लेकिन मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि 1.5 की बजाय आप 1.25 मिनट ज़हन में रखें, क्योंकि आखिर में आपके पास कुछ टाइम्स बचना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को रीचेक कर लें कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया बेटा ड्यूरेशन, क्योंकि 1 घंटे का ड्यूरेशन था। और इसका जो वेटेज है वो 31% है। शायद आपको पता होगा वेटेज क्या होता है। बात ये है कि आपके 3 पेपर्स होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने 40 में से लेट्स सपोज कीजिएगा 35 लिए करेक्ट आंसर्स, तो उसको जो मार्क्स CI काउंट करेगा वो इसको यूं करेगा कि 35/40 मल्टीप्लाई बाय 31। तो 31 में कितना वेटेज बन रहा है? तो आपका जो पेपर 1 का वेटेज है वो 31% है आउट ऑफ 100। 100 में से 31 आपका पेपर 1 है। मैं आपको बताता चलूं, बाकी जो रिमेनिंग कितना परसेंट रह गया, 69% रह गया। तो 69% आपका पेपर 2 और जो आपका प्रैक्टिकल है उसको मिला के परसेंटेज है। उनमें से हर एक का कितना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, 40 MC। कोई सवाल आप लोगों ने करना हो तो आप अपने माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 have 40 MCQs and 40 marks. Each question carry 1 mark. Duration 1 hour. Weightage 31%. All questions are compulsory. There's no choice. You have to attempt all the questions. To secure A grade, 33 MCQs must be right answered.
ये बायोलॉजी का थ्रेशोल्ड है। वैसे तो ये चेंज होता रहता है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करता हूँ कि कम से कम अगर आप बाजों का 32 पे भी ए आ जाता है, लेकिन मैं इनकरेज करता हूँ कि आप एटलीस्ट 33 अगर राइट आंसर्स करते हो तो आपका ए कन्फर्म है पेपर 1 में। मेरे ख्याल में ये कोई न ज्यादा आसान टास्क है और न ज्यादा मुश्किल है कि कोई स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ने वाला है तो वो इस टास्क को अचीव कर सकता है। कंपैरेटिवली अगर आप बाकी सब्जेक्ट में देखें जैसे फिजिक्स है तो वहाँ यूजुअली 26-27 पे ए आ जाता है, बल्कि 25 पे भी आ सकता है ए। लेकिन यहाँ बायोलॉजी का थोड़ा सा चूंकि डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स के मुकाबले में कम होता है, तो यहाँ 33 एमसीक्यूज आपने करेक्ट करने होंगे, तब जाके आप ए स्कोर कर सकते हो। कुछ एग्जामिनेशन टिप्स मैं आपको पेपर 1 के हवाले से देना चाह रहा हूँ ताकि आप इसको फॉलो करें। बेटा ये पहला दिन है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जामिनेशन के हवाले से भी बताता रहा हूँ। अगली क्लास से फिर हमारे डायरेक्ट जो है वो कोर्स कंटेंट शुरू हो जाएंगे, हमने पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह बेटा, अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन फर्स्ट whom you feel confident। यार देखो, जब आपके सामने पेपर आ जाए ना 40 एमसीक्यूज का, तो आप ये ना करें कि आप पहला क्वेश्चन 1 देखे, फिर 2 देखे, फिर 3 देखे। आप ज्यादातर वो क्वेश्चन ढूंढे जिसके अंदर क्वेश्चन ज्यादा लेंदी ना हो। मेजॉरिटी क्वेश्चन एमसीक्यूज में वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं जिसमें थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे कि एक पूरा पैराग्राफ होता है, उसके अंदर कुछ डायग्राम बना होता है और फिर आप नीचे ऑप्शन होते हैं, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो आप पहले पेपर को ओवरव्यू करो। जो छोटे छोटे एमसीक्यूज नजर आ रहे होते हैं, वन लाइन स्टेटमेंट है, और जो आपको आसान लगे, भले वो क्वेश्चन नंबर 13 हो, 29 हो, 32 हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पहले फर्स्ट राउंड में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें ताकि आपका टाइम बचे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप स्टक हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे। अगर आप शुरू से डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे तो आपका टाइम लॉस होगा। होपफुली आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो पहले राउंड में आप आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें बेटा। Each question must be answered in less than 75 seconds। बेटा 75 सेकेंड्स का मतलब हो गया 1 मिनट 15 सेकेंड। कोशिश करें, क्योंकि वैसे तो 1 मिनट और मतलब 1 मिनट और 30 सेकेंड्स तकरीबन टाइम मिलता है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप इसको जल्दी खत्म कर लें ताकि आप आखिर में आपके पास कुछ टाइम बचे। Try not to spend more time on any MCQ। ऐसा ना हो कि आप एक MCQ के पीछे बस पड़ गए कि नहीं मुझे इसका आंसर लेना है, उस पर सोचते रहे और पता चला कि आपने 3 से 4 मिनट इस पे जाया किए। तो ये प्रैक्टिस कभी भी मत कीजिएगा। थोड़ा सा आपको लगा क्वेश्चन टाइम ले रहा है, ये नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं, स्किप करें, आगे जाएं, इस पे अपने आप को स्टक ना करें। तो जो कम टाइम वाले क्वेश्चन है पहले उनको अटेम्प्ट करें, बाद में सेकंड राउंड में उन क्वेश्चन पे आए जो थोड़े कम मुश्किल है, फिर थर्ड राउंड में उन पे आए जो ज्यादा टाइम ले रहे हैं। इस तरह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपका टाइम बचता रहेगा। Don't stuck with any one MCQ. If you feel it difficult, then leave it and skip to next question। That's why I'm talking to you। यही बात मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था कि आप किसी एक MCQ पे अपने आप को स्टक ना करें, बल्कि स्किप करते जाएं, आगे मूव करते जाएं। बेटा ये क्लियर है सबको? आप इन इंस्ट्रक्शंस को याद रखेंगे ना? बिल्कुल। तो आप इन इंस्ट्रक्शन को लाजमी याद रखेंगे। आखिर जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा इंशाल्लाह, उस दिन पहले फिर भी मैं आपके साथ एक राउंड रखूंगा ताकि आपको चीजें दोबारा रिमाइंड कराई जाएं। सर यस बेटा, एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि 40 एमसीक्यूज हैं, 40 मार्क्स का है, तो 33 मार्क्स आएंगे तो ए बन सकते। तो मैक्सिमम ग्रेड का यहाँ पे ए है या फिर ए स्टार है? बेटा एएस के अंदर ए स्टार नहीं होता, एएस मैक्सिमम ग्रेड होता है। ए स्टार सिर्फ A2 में होता है, यानी ए लेवल में होता है। एडवांस सब्सिडरी में ए स्टार नहीं होता, याद रखिएगा। ओके ठीक है, ओके चलिए जी, नेक्स्ट। लेट्स टॉक अबाउट द पेपर 2 नाउ। पेपर 2 में क्या क्या चीजें हैं और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बेटा सबसे पहले तो इसका टाइम ड्यूरेशन है 75 मिनट्स का मतलब होता है 1 घंटा 15 मिनट जो आपको दिए जाएंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। टोटल मार्क्स होंगे इनके 60। तो
तो 60 मार्क्स के लिए 75 मिनट्स। इसका मतलब है 1 मार्क के लिए 1.25 मिनट्स, जो कि एमसीक्यूज के मुकाबले में कम है। एमसीक्यूज में थोड़ा टाइम ज्यादा दिया जा रहा था क्योंकि एमसीक्यूज थोड़ा टफ होता है। ओह ग्रेट वेटेज, इसका वेटेज ज्यादा है। कितना वेटेज है? 46% है इसका वेटेज। तो 46 इसका हो गया और पेपर 1 का मैंने बताया था 31%। तो ये दोनों मिला के बनते हैं 77%। जो आपका रिमेनिंग 23% है वो आपके प्रैक्टिकल्स का होगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक बच्चा जिसकी प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छे नहीं है, वो प्रैक्टिकल में घबराता है या प्रैक्टिकल वर्क सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाता, उनके लिए जरूरी है कि वो पेपर 1 में और पेपर 2 में जान मारे, अच्छा स्कोर ले आए। तो अगर प्रैक्टिकल में उसका ग्रेड खुदा ना खास्ता खराब भी होगा तो तब भी वो अपना ए मेंटेन कर सकेगा। यानी अगर एक बच्चा पेपर 2 में और पेपर 1 में ए लेके आ जाए तो पेपर 3 में अगर खुदा ना खास्ता सी भी आ जाए तब भी उसका ग्रेड मेंटेन रहेगा, क्योंकि उसकी वेटेज कम है। तो ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखनी है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपने जान मारनी है। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि जो आपका 60 मार्क का पेपर है पेपर 2, इसका भी एक थ्रेशोल्ड लेवल है कि कितने पे ए बनता है, वो मैं अभी आपके साथ आगे शेयर करूंगा। मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम कह रहा हूं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 7 क्वेश्चंस हमने कभी नहीं दिए कि पेपर में। मैक्सिमम 6 क्वेश्चन तक आते हैं और ये वेरिएबल नंबर्स के होते हैं। कभी 6 मार्क का है, 9 मार्क का है, 8 मार्क का है, अलग अलग क्वेश्चंस के वेरिएबल नंबर्स होते हैं, लेकिन टोटल मार्क्स 60 बनते हैं। इसमें भी सारे क्वेश्चंस बेटा कंपलसरी होंगे, कोई क्वेश्चंस आप छोड़ नहीं सकते। और ये स्ट्रक्चर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप ओ लेवल का पेपर 2 करते थे, लाइनें दी गई होती, स्पेस दिया गया होगा, उसके अंदर आपने आंसर्स लिखने होंगे। ये आ गया थ्रेशोल्ड आपके सामने बेटा। मोस्टली 47 मार्क्स इज द बाउंड्री फॉर सिक्योरिंग ए ग्रेड इन दिस पेपर। अच्छा 47, बाज़ औक़ात 45, 40, 44 पे भी आया है, लेकिन सेफ साइड पे मैं कहूंगा कि 47 स्कोर अगर आप करते हैं आउट ऑफ 60 तो आप सेफ है, आपका ए आता है। वैसे तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आए ताकि आपका जो वेटेज है, जो आपका ए बन रहा हो वो ऊपर लेवल, ताकि नीचे आने का खतरा कम से कम हो। लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि जो बाउंड्री है वो 47 है। तो 47 आउट ऑफ 60 का मतलब हो गया आपका ए ग्रेड पेपर 2 में बन गया है। और इसका वेटेज जो है वो 46% है। यानी जो आपके मार्क्स आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके 47 मार्क्स आए हैं तो 47 आउट ऑफ 60 मल्टीप्लाई बाय 46 आपका ये वेटेज बन जाएगा। होपफुली आप मेरी बात समझ रहे हो और कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर। ओके चले, लेट्स सम एग्जाम टिप्स अबाउट द पेपर 2। तो पेपर 2 के मुतालिक कुछ एग्जाम टिप्स मैं बताता हूं कि किस तरह इस पेपर को टैकल करना है। एक तो आप सबको पता चल गया कि इस पेपर का वेटेज सबसे ज्यादा है 46%, जबकि पेपर 1 का 31% है और प्रैक्टिकल का 23% है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करता है और आउटस्टैंडिंग तैयारी करता है तो यहाँ अगर वो ए लेके आता है, तो चूंकि ज्यादा वेटेज वाले पेपर में ए आ गया तो ज्यादा चांसेस होंगे कि उस बच्चे का ग्रेड ए बन जाए। लेकिन अगर किसी बच्चे का प्रैक्टिकल में ए बनता है और वो पेपर 2 में अच्छा फोकस नहीं कर पाता तो बेकार हो जाएगा, इतना अच्छा ग्रेड नहीं आ सकेगा। अच्छा ग्रेड लाने के लिए कम से कम पेपर 2 में आपका बहुत अच्छा ग्रेड हो, तब जाके आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, again answer those questions whom you are confident। एक बार फिर जैसे कि आपने एमसीक्यूज वाले पेपर में किया था, यहाँ पे भी यही करें, पेपर खोलें और क्वेश्चंस देखना शुरू करें। जो आपके पास 6 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चंस है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। हर क्वेश्चन में से अगर कोई सब पार्ट भी हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर सेक्शन सी है, वो आसान है, तो जो सब पार्ट है वो भी आप टैकल कर सकते हो। पहले वो पार्ट करें, जो भी आपको आता हो पेपर में, पहले वो
सॉल्व करें। आप अपना हाथ ना रोकें, बस आप एंगेज हो, लिखते रहें लिखते रहें। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो, आप पेन जो है वो दांतों से चबा रहे हो और सोच रहे हो, तो ये आप पे प्रेशर डेवलप होता जाएगा, टाइम कम होता रहेगा और पेपर बड़ा होगा, तो आप आखिर में आसान चीजें भी लिखना भूल जाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो ही आपके सामने पेपर आ जाए तो बस आप फौरन आसान चीजें ढूंढे और इसको सॉल्व करना शुरू करें ताकि आपका टाइम मैनेज होता रहे। अच्छा, अटेम्प्ट द डिफिकल्ट क्वेश्चन एट द एंड, वही बात हो गई, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको बिल्कुल एंड पे कर दे। अच्छा, यूज द करेक्ट वर्डिंग while answering questions like describe, explain, suggest, outline, discuss, etc. अच्छा, ये ओ लेवल में इतना नहीं देखा जाता, लेकिन ए लेवल में इसको बहुत ज्यादा गौर से देखा जाता है एग्जामिनर, कि जो आपसे सवाल में पूछा गया है वही उसी लिहाज से आपने जवाब देना है। अगर क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब लिखा है तो आपने डिस्क्राइब ही करना है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में एक्सप्लेन लिखा है और आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन बता रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और एग्जामिनर इसको लिख देता है इग्नोर। इग्नोर का मतलब है कि बच्चा जो लिख रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट नहीं है, हमने ये सवाल नहीं किया था जो वो लिख रहा है। तो इसलिए आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि एग्जामिनर जो पूछ रहा है क्या आप उसी के हिसाब से जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उसकी बात है सजेस्ट। सजेस्ट एक, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह जब आप पास पेपर्स हम सॉल्व करेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन का क्या होता है, सजेस्ट का क्या होता है, आउटलाइन का क्या होता है, डिस्कस का क्या होता है। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। राइट, ट्राई टू अकोमोडेट योर आंसर्स इन द गिवन स्लॉट्स। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं बताऊं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत सारे टीचर्स बच्चों से कहता है बेटा जितनी जगह दी गई है उसी जगह के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए, मैं इसकी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैंने खुद जो जितनी भी मीटिंग्स अटेम्प्ट किए हैं कैम्ब्रिज के, तो एग्जामिनर ये कहता है कि अगर आप की डिस्क्रिप्शंस उस जगह में नहीं आती जितनी जगह आपको दी गई है तो कोई बात नहीं, आप उसी पेपर के नीचे जो खाली स्पेस है वहां लिख सकते हैं, वहां लिख सकते हैं, इवन टू पेपर के साइड पे भी लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें फजूल है कि नहीं आप वही जगह लिखेंगे जहां लिखना चाहिए। लेकिन बेहतर ये है, एग्जामिनर कहता है कि एक इंटेलेक्चुअल और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट वो होता है कि जो अपने आंसर्स को प्रिसाइज करे और अपने ये स्लॉट्स के अंदर ले आए। ये कहलाते हैं पेपर सॉल्विंग स्किल्स। क्या कहलाते हैं? पेपर्स सॉल्विंग स्किल्स। यानी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, स्किल्स होती है कि आप सेंटेंस मेकिंग आपकी कैसी है। इसके अलग से मार्क्स होते हैं, एक आध मार्क इसका भी होता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को अपने स्लॉट्स में नहीं रखते तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनर आपका क्वेश्चन या आंसर चेक नहीं करेगा, बिल्कुल चेक करेगा, मार्क्स भी देगा। लेकिन थोड़ा सा कोशिश ये करे। अब देखो ना बेटा, ये कैसे मुमकिन है कि अगर एग्जामिनर ने 4 लाइनें दी है, एक बच्चा लिख रहा है जिसकी राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी है और एक बच्चा जिसकी राइटिंग बहुत छोटी छोटी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो दोनों चारों लाइन में अपने आंसर्स अकोमोडेट करे? डेफिनेटली फर्क आएगा। तो इसलिए एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आप इस चीज से मत घबराएं कि यार ये जगह भर गई, मैं कहाँ लिखूं। आपको जो भी पेपर पे स्पेस नजर आ रहा है, बस कोशिश करें कि जो बार होता है उस बार के ऊपर खत्म करें, क्योंकि वो फिर वहाँ उसको वो स्कैनिंग में नहीं आता, वो चेकिंग में नहीं आता। तो कोशिश ये करें कि आप जितना ज्यादा लिख सकते हैं लिखें, क्योंकि हमारे बच्चों की यूजुअली मैं गुज़िश्ता 18-20 साल से देख रहा हूँ, जो मेरे बच्चे होते हैं क्लास में, उनके पास नॉलेज बहुत होती है बायो में, लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी नहीं होती। वो जब शुरू करते हैं, अभी 2 लाइनें लिखी है और अभी कॉन्सेप्ट शुरू ही नहीं हुआ, जगह जगह वो भर गई। तो ये स्किल्स डेवलप कैसे होंगे? ये डेवलप ऐसे होंगे कि आप घर पे पास पेपर्स की जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी ये स्किल्स डेवलप होंगे। इसीलिए बेटा मैं आपसे बताता हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। 4 महीने में आप सिर्फ सिलेबस खत्म करना थोड़ी है, सिलेबस खत्म करना भी है, पेपर सॉल्विंग स्किल्स भी समझने हैं और पास पेपर के ट्रैक्स भी समझने हैं। ये सारी चीजें समझने के लिए बहुत कम टाइम है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना टाइम बर्बाद ना करें फजूल एक्टिविटीज के अंदर। आज तो हम कॉलेज में आ गए हैं, अब ये एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी है, बिल्कुल आप करें, इट्स योर टाइम, आप इंजॉय करिए, आपका टाइम है। लेकिन स्टडी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, उसके लिए आपने अपना एक टाइम टेबल प्लान करके बनाएं, तीनों सब्जेक्ट के लिए या चारों सब्जेक्ट जितने भी आपने ऑप्ट किए हैं, और उसको बाकायदा प्रॉपर टाइम दें ताकि आखिर में आपके ऊपर बर्डन ना हो। ठीक है, चले।
अब आते हैं जरा पेपर 3 की तरफ, जो आपका लैब वर्क है, यानी प्रैक्टिकल स्किल्स है, और इसको हम भी देखते हैं इस पे क्या क्या करना होता है। सो बेटा टोटल मार्क्स इसके हैं 40 मार्क का ये पेपर होता है, जो आपका प्रैक्टिकल तो मैंडेटरी पेपर है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 घंटे। तो अब आप थोड़े से हैरान होंगे कि मार्क्स सिर्फ 40 है और टाइम 2 घंटे 120 मिनट, जबकि 60 मार्क के पेपर के लिए सिर्फ 75 मिनट्स दिए गए थे, 1 घंटा 15 मिनट, और यहाँ 40 मार्क के लिए 2 घंटे। क्या वजह हो सकती है? वजह यह है कि यहाँ आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप बाकायदा लैब में खड़े होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, माइक्रोस्कोप, स्लाइड बने पड़े हैं, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर उस स्लाइड को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, दैट्स व्हाई इट्स टाइम ड्यूरेशन इज लॉन्ग, इट्स मीन 2 आवर्स। अब देखते हैं कितने प्रैक्टिकल्स आपने करने होते हैं और इसका वेटेज क्या है। वेटेज आपको बताया था मैंने, 23% रिमेनिंग है, जो कि आपके पेपर 3 का वेटेज है। सिर्फ 2 प्रैक्टिकल्स है आपको सॉल्व करने, जो कि मैंडेटरी है। इन 2 में से एक को हम कहते हैं वेट प्रैक्टिकल्स और एक को कहते हैं ड्राई प्रैक्टिकल। क्या फर्क होता है दोनों में? वेट प्रैक्टिकल्स में केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कोई एंजाइम पे प्रैक्टिकल है, कोई रेट ऑफ रिएक्शंस आप मालूम कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएजेंट्स दिए गए हैं, केमिकल्स हैं। जबकि ड्राई प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता, सिर्फ माइक्रोस्कोप पड़ा होगा और एक स्लाइड होगा जो कैम्ब्रिज से आया होगा, और वो स्लाइड हमें किसी को भी नहीं पता कि कौन सा स्लाइड है। जिस वक्त प्रैक्टिकल शुरू होगा तो वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख देगा और स्टूडेंट उसको ऑब्जर्व करेगा, और पेपर के अंदर उसी स्लाइड के हवाले से क्वेश्चंस होंगे, आपसे पूछेंगे कि आप इस स्लाइड को ऑब्जर्व करें, अच्छी तरह ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्व करने के बाद पेंसिल से एक आम किस्म का प्लान डायग्राम बनाएं पेपर में, और कितने टिश्यूज इसमें नजर आ रहे हैं वो बता दें, और साथ में आपको पेपर के अंदर एक डायग्राम दिखाया गया होगा उसी स्लाइड से मुतल्लिक, और आपसे कहेंगे कि जो डायग्राम हमने पेपर में दिखाया है और जो आपने स्लाइड में देखा है उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस है। तो उस पे एक सवाल आता है, इस तरह ये कहलाता है ड्राई प्रैक्टिकल। तो ड्राई प्रैक्टिकल में एक्सक्यूज मी सर। श्योर सर लैब का काम आप करवाएंगे या कोई और टीचर करवाएंगे? बेटा लैब के लिए हमारा एक और टीचर होगा, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जो आपको प्रैक्टिकल्स कराएंगे, लेकिन मैं अवेलेबल हूँगा। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में किसी किस्म की दुश्वारी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बट मुस्तफ़ा साहब बहुत अरसे से प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं, ही इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड इंटेलिजेंट प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर, तो वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ प्रैक्टिकल्स कराएंगे। ओके सर। राइट अच्छा, तो ये 2 चीजें हो गई, एक आपका वेट प्रैक्टिकल होगा और एक आपका ड्राई प्रैक्टिकल हो गया। ड्राई प्रैक्टिकल इंक्लूड्स माइक्रोस्कोपिक वर्क, इसमें आपका माइक्रोस्कोप इन्वॉल्व होगा, और इसमें कोई केमिकल रिएजेंट्स वगैरह इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने कि वेट प्रैक्टिकल्स में इन्वॉल्व होते हैं। वेट प्रैक्टिकल्स इंक्लूड एनी टॉपिक रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल वर्क, मसलन एंजाइम्स, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स हो गई, ऑस्मोसिस पे कोई रिएक्शन आ गया, ट्रांसपायरेशन पे कोई एक्सपेरिमेंट आ गया, या इसी तरह फोटोसिंथेसिस पे कोई प्रैक्टिकल आ गया, जर्मिनेशन पे कोई प्रैक्टिकल आ गया, तो ये सारे वेट प्रैक्टिकल में आएंगे, उसमें बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे। देयर आर 2 वेरिएंट्स ऑफ द पेपर, पेपर 3-3 एंड पेपर 3-4। अच्छा, प्रैक्टिकल के बेटा 2 वेरिएंट होंगे, एक को हम पेपर 3-3 कहते हैं और एक को 3-4 कहते हैं। तो जिस वक्त आप कैम्ब्रिज एग्जाम्स के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो उस वक्त आपसे पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन सा प्रैक्टिकल ऑप्ट करना चाहते हैं, 3-3 या 3-4। तो जो बच्चे 3-3 लेना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन होता है S फॉर सिंगल, तो S3 जो लेकेगा, S3 का मतलब होगा 3-3, और जो S4 लेकेगा उसका मतलब होता है 3-4। तो दोनों प्रैक्टिकल्स में से आपकी मर्जी होगी, कोई भी ऑप्ट कर सकता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जिसको आपने ऑप्ट किया है वही आपको मिले। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे हैं कि क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं और सब ने 3-3 ऑप्ट किया है, तो फिर 3-4 कैसे ऑप्ट होगा? इसलिए एग्जामिनर फिर अपने मर्जी से इसको 50-50 डिवाइड करके आधे को 3-3 और आधे को 3-4 देते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है, ज्यादातर बच्चे के चॉइस पे होता है, वो जो मांगता है उसको मिलता है। अब इन दोनों प्रैक्टिकल में फर्क क्या है? क्या इसमें से कोई आसान है या कोई मुश्किल है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज दोनों प्रैक्टिकल्स का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बराबर होता है।
अब ये अलग बात है कि जिस बच्चे ने 3-3 को ऑप्ट किया था उसको एंजाइम पे प्रैक्टिकल मिला और वो एंजाइम में वीक है, तो वो कहेगा यार मेरा प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल था, और उसको फोटोसिंथेसिस पे प्रैक्टिकल मिल गया है तो 3-4 वाले को, और वो फोटोसिंथेसिस भी वीक है तो वो कहेगा। तो ये तो बच्चे की अपनी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। कैम्ब्रिज कहता है कि हमने जो प्रैक्टिकल्स डिजाइन किए हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल्स बराबर होंगे। अच्छा, फिर उन्होंने फिर वेरिएशन क्यों रखी है? वेरिएशन बेटा इसलिए रखी है क्योंकि ये बच्चे जो कि एग्जाम में ज्यादा होते हैं, इसलिए एक प्रैक्टिकल मई की शुरू में होता है और एक प्रैक्टिकल मई के आखिर में होता है। तो कुछ बच्चे अपने हिसाब से देखते हैं कि किसको कौन सा टाइम सूट कर रहा है, शुरू वाला या आखिर वाला। इस वजह से 2 वेरिएंट रखे गए हैं। तो कुछ एग्जाम टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। पेपर 3 के हवाले से, प्रैक्टिकल के हवाले से कुछ टिप्स बता देता हूँ। कौन किस्म के टिप्स होते हैं? Half of the students participate in paper 3 and other half in paper 3-4. You have a choice to select the variant. However, British Council have the rights to offer you any one of it, or Cambridge or British Council means both of them have the rights to give you any one of the practicals. Paper 3 is conducted in the first week of May, and paper 3-4 is conducted in the last or third week of May. लेकिन कैम्ब्रिज भी कभी कभी क्या करते हैं, इसको घुमा देते हैं, और कभी कभी ऐसा कर लेते हैं कि 3-4 को पहले करा देते हैं और 3-3 को बाद में करा देते हैं। तो ये आप अपना टाइम टेबल देखिएगा, दिसंबर या जनवरी में जब आपका टाइम टेबल आता है उसमें चीजें लिखी होगी, उसके हिसाब से जब आप अपने रजिस्ट्रेशंस कराएंगे तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से उस वेरिएंट को आप ऑप्ट कर दीजिएगा। According to Cambridge, both variants have the same difficulty level, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया। Microscopic work include drawing, slide observation, magnification calculation, etc. मैग्निफिकेशन कैलकुलेशन में होता ये है कि यूजुअली वो आपसे कहते हैं कि पेपर के अंदर कोई ड्राइंग बनी होती है, ऑलरेडी बनी होती है क्वेश्चन पेपर के अंदर, और आपसे कहते हैं कि आपने माइक्रोस्कोप में जो स्लाइड देखी है उसको बना लीजिएगा। आप खुद बना देते हैं, पेपर में ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि आपकी ड्राइंग पेपर में बने हुए ड्राइंग से और ओरिजिनल ड्राइंग से कितना बड़ा है, तो इसकी मैग्निफिकेशन की कैलकुलेशंस होती है इस पेपर के अंदर। You must have to complete each practical in 55 minutes. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, जब आप लैब में जाओगे तो जहां आपका रोल नंबर लिखा होगा, आपका जो एडमिट कार्ड पे जो नंबर लिखा होता है, आप टेबल पे वो नंबर लिखा होगा और वहां आप देखेंगे कि आपके सामने माइक्रोस्कोप पड़ा है या वेट प्रैक्टिकल पड़ा है। तो जो प्रैक्टिकल आपको मिलेगा वही आप स्टार्ट करेंगे और आपके पास 55 मिनट्स होंगे। जो ही 55 मिनट्स पूरे हो जाएंगे तो आपको स्विच किया जाएगा दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ, क्योंकि 2 प्रैक्टिकल्स होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे में दोनों प्रैक्टिकल्स के लिए खड़े होंगे और आप अपनी मर्जी से करेंगे, ऐसा नहीं है। आप बाउंड होंगे कि आप पहला प्रैक्टिकल चाहे वो माइक्रोस्कोप पर आपको मिले या वेट प्रैक्टिकल मिले, आपने इसको 55 मिनट्स में खत्म कराना होगा। 5 मिनट आपको एग्जामिनर इसलिए दे देता है ताकि आप अपना प्रैक्टिकल स्विच कर दें। इस तरह 1 घंटे में आप दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ चले जाते हैं। तो क्लास के अंदर अगर फॉर एग्जांपल लैब के अंदर 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 25 प्रैक्टिकल्स और 25 माइक्रोस्कोप पड़े होते हैं। तो 25 माइक्रोस्कोप पे 25 बच्चे और बाकी 25 जो है वो दूसरा वेट प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। 1 घंटे के बाद वेट प्रैक्टिकल वाले माइक्रोस्कोप पे आ जाते हैं और माइक्रोस्कोप वाले वेट पे आ जाते हैं। इसलिए आपको 55 मिनट के बाद अपना सेटअप छोड़ना पड़ेगा ताकि वो दूसरा बच्चा जो माइक्रोस्कोप पे लगा रहा है वो यहाँ आ सके और आप उनकी जगह ले सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि लैब के अंदर आपके पास जो टाइम है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे लैब में खड़े रहेंगे। After 55 minutes, students will shift their setup from wet to dry practical and vice versa. So this is the overall procedure, how you have to know about all these things. And this was the important points which I want to share with you people. So it's a 2 minutes break now and it's your turn.
if there's any questions in your mind, if you want to ask me anything related to AS level and its curriculum, you can ask me. सर Yes, Fahim. एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने कहा प्रैक्टिकल्स में 2 घंटे का होता है एंड 55 मिनट्स हम देते हैं फर्स्ट प्रैक्टिकल के लिए एंड देन फिर हम स्विच करते हैं टू द सेकंड प्रैक्टिकल और फिर वो होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि फिर इसका मतलब ये होगा ना, तो ऐसा नहीं होगा कि पहला प्रैक्टिकल है उसमें 55 मिनट्स होगा पर सेकंड प्रैक्टिकल में तो 1 आवर फुल हम ले सकते हैं। 1 आवर फुल आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जब आप सेकंड प्रैक्टिकल के लिए स्विच होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। वैसे तो हम 5 मिनट्स का टाइम देते हैं, लेकिन 5 मिनट्स का मसला ये होता है कि यूजुअली होता 5 मिनट से, लेकिन बच्चे स्विच होने में, इधर उधर जाते हुए, केमिकल को साफ करने में 5 मिनट से 7-8 मिनट लग जाते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जब आखिर में आप पेपर्स सबमिट करते हैं तो जरूरी है कि आप 5 मिनट पहले प्रैक्टिकल दोनों एक बार रिव्यू कर लें, इसलिए आखिर में आपको लाजमी बात है 5 मिनट चाहिए होंगे रिवीजन के लिए ताकि दोनों प्रैक्टिकल को एक बार रिव्यू कर सके। सही है, ठीक है। Yes, students, any other question related to AS level biology? Yes, sir. I want to ask, is there any Yes, Samita. specific book intros Yes. for AS biology? That's a very good question. Very good question. And I'm so sorry, I forgot about the books. तो please अगर आपके पास पेन है और कॉपी है, रजिस्टर्ड है, तो आप प्लीज अपने ये जो दोनों बुक्स है इसके नाम अपने पास लिख लीजिएगा। एक तो आपकी जो बुक है वो है एडवांस बायोलॉजी बाय, किस राइटर कौन है? मैरी जोन्स। मैरी जोन्स, MARYJOHNS, मैरी जोन्स। और ये जो मैरी जोन्स का जो बुक है, इसकी जो 5th एडिशन है वो आप परचेज कर लें, 5th एडिशन। तो 5th एडिशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके अंदर एक CD भी पड़ी होती है बुक के अंदर, और आई थिंक ये ग्रीन कलर की इसका फ्रंट पेज है, और ये आपका टेक्स्ट बुक है जो आपने लाजमी परचेज करना है। हर बच्चे के पास ये बुक होना ज़रूरी है। दूसरी जो बुक है जो एज अ रिसोर्स के तौर पे आप लोगों ने लेनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ग्रेड आते हैं, यूजुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। थोड़ी मोटी सी बुक है, आप देख के थोड़ा घबरा जाएंगे कि यार ये कौन सी बला है, लेकिन वो एक रिसोर्स बुक है, वो सारा पढ़ना नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो आपने पढ़नी है। उसका नाम है एडवांस बायोलॉजी बाय सुपर। सुपर की स्पेलिंग है SOPER, SOPER। SOP तो आप जानते हैं, आजकल कोरोना का बड़ा मशहूर नारा SOP, तो SOP के साथ ER लगा दें, सुपर। ये है एक रेड कलर की भी आती है, ग्रीन कलर की मोटी बुक आती है, लेकिन सर कैन यू रिपीट द नेम? या एडवांस बायोलॉजी बाय सुपर, SOPER। तो ये बुक आपको कहीं से भी मिल जाएगी। तो सॉरी, थोड़ा से एक्सपेंसिव बुक है ये, लेकिन ये है कि अगर आप पायरेटेड कॉपी किसी भी बुक स्टॉल से ले लें, और बाद जगह ये बुक मिलती भी नहीं है, लेकिन ये है कि मोटी बुक है काफ़ी, और इसका कोई भी आप वो ले लें एडिशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लेटेस्ट एडिशन है, कुछ पुराने हैं, लेकिन दोनों चलते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बस थोड़ा सा है कि इसका पेपर की क्वालिटी थोड़ी सी लो है, जैसे कि कोई न्यूज़पेपर का पेपर है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इस बुक के अंदर ये है कि जब आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें ए लेवल्स का, उस पेपर में जो डायग्राम आए होते हैं ना, वो डायग्राम सॉपर से उठाए जाते हैं। तो सॉपर के अंदर जो डायग्राम होते हैं यूजुअली वो आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। तो है तो दोनों बुक अच्छे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर बुक है वो एडवांस बायोलॉजी बाय सॉपर है। मैरी जोन्स तो आपको सबने लेनी है, वो कलर्ड बुक है, शाइनी पेजेस है, जैसे कि आप लोगों ने केमिस्ट्री के प्रेस्कॉट बुक ली थी ओ लेवल में, शाइनी और अच्छे कलरफुल पेजेस होते हैं इनके। तो आपका मैरी जोन्स है 5th एडिशन। तो दिस इज अबाउट द बुक्स। इसके अलावा मैं अपने नोट्स आप लोगों को दूंगा, तो मेरे बुकलेट्स होंगे, बुक 1, बुक 2, बुक 3 आपको मिलते जाएंगे, और वो कॉम्प्रहेंसिव नोट्स होंगे चैप्टर के। इसके साथ साथ आपके पास जो MCQs की बुकलेट होगी वो अलग मिलेगी, पेपर 2 अलग मिलेगी, उनके मार्किंग स्कीम होंगे। वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा, सोर्सेस आपके पास बहुत सारे होंगे, लेकिन ये आपका काम है कि आप इन रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज करते हो अपने ग्रेड के लिए। तो जो ऑनेस्ट होगा अपने ग्रेड के साथ, वो बिल्कुल अपना ग्रेड ले आएगा इंशाल्लाह। यस बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? यस यस, FKT यूज कर सकते हैं बुक्स की?
क्या कह रहे हो तुम बेटा? सर मैं कह रहा हूँ कि सॉफ्ट कॉपीज यूज कर सकते हैं बुक्स की? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने में आपको आसानी होती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर वो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हार्ड कॉपी ये होती है कि हर वक्त हमारे पास अवेलेबल होती है, लाइट है या नहीं है, नेट चल रहा है नहीं चल रहा, तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं। यूजुअली मैं बच्चों के साथ जब नोट्स शेयर करता हूँ तो मैं नोट्स की भी हार्ड कॉपी भी देता हूँ और सॉफ्ट कॉपी भी देता हूँ, लेकिन बच्चे हमेशा एतराज करते हैं कि सर आप हमें सॉफ्ट कॉपी तो दे रहे हैं लेकिन हमें हार्ड कॉपी की जरूरत है, आपकी बुक हमारे पास बुकलेट होनी चाहिए ताकि इसको घर से पढ़े। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़े या हार्ड कॉपी से पढ़े। मैं बस ऐसा कोई इशू तो नहीं है ना, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना चाहे तो? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन बस ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सॉपर की बुक है, एडवांस बायोलॉजी बाय सॉपर, उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी नहीं है उसकी सॉफ्ट कॉपी, तो वो आपको लाजमी परचेज करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, वेलकम बेटा। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? ये फाइज से देखिए शायद पूछ रहे हैं, प्लीज राइट द नेम ऑफ द बुक इन द चैट। अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकंड मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आप सबको मिले, एवरीवन को मैं कर लेता हूँ। बेटा मैं टाइप कर रहा हूँ एडवांस बायोलॉजी बाय मैरी जोन्स एंड दैट इज 5th एडिशन, और दूसरा है एडवांस बायोलॉजी बाय सॉपर। ये आपको शायद सॉपर की बुक शायद आपको लाइब्रेरी में मिल जाए, पहले वहां से देख लीजिएगा, एडवांस बायोलॉजी बाय सॉपर। तो ये दो बुक्स हैं। जी उजैर। यस बेटा, और कुछ? सर जी अरिन। सर ये हमें कॉलेज की तरफ से जो बुक लिस्ट है उसके अंदर एक गाइड भी है, तो वो भी लेना है? बेटा गाइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप अगर लाइब्रेरी अगर कॉलेज में अवेलेबल है तो आप जाके लाइब्रेरी में जब आपको टाइम मिले पढ़ें आप। और देखो ये तो बेटा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कोई बच्चा अगर बहुत कुछ रिसोर्सेस, देखिए मैं आपको राज की बात बताऊं, ए लेवल्स भी उन बच्चों के ग्रेड अच्छे आते हैं जिनके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज हो, वो जितना ज्यादा पढ़े मुख्तलिफ एंगल से, क्योंकि अब आप स्कूल के बच्चे नहीं रहे। स्कूल में ये होता है कि टीचर्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो हर चीज लिखवाते जाएं देते जाएं। कॉलेज में ये होता है कि बच्चा अपने रिसोर्सेज खुद ढूंढते हैं। मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर दूंगा, ये आपका सिलेबस है। अब उन सिलेबस के जो भी टॉपिक है वो आप किसी भी बुक से पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उसको इंप्लीमेंट करें कि क्या आप पास पेपर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो यू आर सेफ। बड़ा आसान सा तरीका है, अपना सिलेबस अपने सामने रखें, टॉपिक पढ़े, सिलेबस को जो टॉपिक आप पढ़े उसको हाईलाइट करें, ये मैंने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, और फिर उसको चेक करने के लिए पास पेपर के क्वेश्चन साथ साथ करते जाएं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है? जी सर। यस, एनी अदर थिंग? जी बेटा, और कोई किसी को पूछना है किसी भी हवाले से, एग्जाम्स के हवाले से या? नो सर, ऑल क्लियर। क्लियर है? यस सर, ऑल क्लियर। अच्छा अच्छा, ये फातिमा अजीज पूछ रहे हैं मेरी जॉन्स वाली वही ये जिसको कवर में पेंजेंस, मेरे ख्याल में शायद ऐसा ही है। शायद आप सही कह रहे हैं, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं कि उस पर पिक्चर किस चीज़ की बनी है। मेरे ख्याल ब्लू कलर की नहीं है बेटा, वो ग्रीन कलर की है जो मेरी जॉन्स है। आप चेक कीजिएगा, उसके ऊपर लिखा होगा 5th एडिशन, तो आई एम नॉट श्योर। मैं अगर आप अभी गूगल पे चेक कर लेंगे तो आपके पास उसका पिक्चर आ जाएगा, आपसे शेयर कर सकते। नहीं बेटा 4th, हाँ सही है, वो 4th एडिशन होगी। बेहतर ये है कि जो लेटेस्ट आया है वो 5th एडिशन है, लेकिन अगर 5th नहीं मिले तो 4th भी चल जाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है? जी बेटा, एनीथिंग एल्स? अच्छा चले, तो बस अब ऐसा करते हैं कि मैं आपके साथ एक दो चीजें थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ।
और जो चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल है वो कौन कौन से हैं, मेरे ख्याल में उस पर भी हम बाद में डिस्कशन करते हैं। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास था और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं ज़्यादा ना थकाऊं। पहले दिन आप ये ना कहें कि यार सर ने तो बोर कर दिया, इतनी सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रहा है। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स करें, चिल करें। और मैंने कहा भी था कि आज क्लास में थोड़ा सा छोटी क्लास लूँगा। आप सर आज हमारे इंट्रोडक्शन था और इंशाल्लाह फिर अगली क्लास से मैं बाकायदा आपके साथ सिलेबस ब्रेकअप डिस्कस करूंगा। लेकिन बस आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने एडमिशन क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया है वो प्लीज कंप्लीट कर ले जितनी जल्दी हो सके, ताकि मेरे ऊपर प्रेशर कम हो, मैं अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करूँ शुरू कर लूँ, क्योंकि बड़ा लेंदी सिलेबस है। या आपके कोई दोस्त वगैरह है जो भी रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको प्लीज फाइनली आप बता दें कि भाई हम अपना कोर्स जो है आगे लेके जाएंगे, क्योंकि एज लेवल में रिवीजन मुमकिन नहीं होती और बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को कोप अप करना। सो दिस इज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चले इंशाल्लाह ताला। देन अगर कुछ चीज़ पूछनी नहीं है तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अच्छा, ये कुछ अलीशा पूछ रहे हैं, सर डू वी हैव टू प्रिपेयर सेपरेट नोटबुक फॉर बायोलॉजी और द कॉलेज वुड प्रोवाइड अस द नोटबुक? मेरे ख्याल में नोटबुक आपको वहाज हुसैन वाली नोटबुक जो है वो आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा और उसके अंदर ही आप वैसे मेरा अपना बेहतर मशवरा आप लोगों को ये है कि आप एक डिवाइडर लीजिएगा जो कि एक रजिस्टर टाइप होता है, इसके अंदर पार्टीशन होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, आप तीनों उसके अंदर लिखें। एक पार्टीशन फिजिक्स के लिए रखें, एक बायो के लिए, डेली बेसिस पे जो आप लेक्चर्स वगैरह लिखते हैं, नोट्स करते हैं, पॉइंट्स वगैरह उसके लिए रखें। तो उसमें आसानी ये होगी कि एक ही रजिस्टर में आपकी तीनों सब्जेक्ट के लिए लेना पड़े, वरना बहुत मुश्किल होता है कि अलग अलग रजिस्टर आप उठा के रोजाना लेके आया करें। तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक मोटा सा रजिस्टर, इसमें जो 3 डिवाइडर लगे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और मेरे ख्याल में ये अगर आप देखेंगे तो ये शायद आपको वहाज हुसैन से मिल भी जाएंगे, अदरवाइज आप खुद अपना भी परचेज कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। चले, वेलकम अलिशा जी। एनी अदर थिंग यू वांट टू आस्क मी? ठीक है बेटा, सो देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Have a great day, sir. Bye. थैंक यू बेटा, अल्लाह Sir, हाफिज। thank you so much.